our day with a positive news. As India assumes the G20 presidency and convenes the Leaders Summit this year, the time is right for equipping its young citizens to live and work in a globalized world. Aiming to become a global knowledge superpower, India places high value on education. शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Hello everyone, this is Janshi Raichura from class 9F. How are you all on this cold winter morning? Sleeping? Well, so am I. But as we approach the end of the academic year, let us all take in these brief moments we have together, these few minutes together before the next year begins. Sarojini Naidu, as you all must know, was an important freedom fighter of India, also known as the Nightingale of India. A proponent of civil rights, women's emancipation and anti-imperialistic ideas, she was the first woman president of the Indian National Congress. She later became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of governor. तब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वह वाक्यांश किसी और ने नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू ने खुद कहा है। चलिए अब हम एक कविता सुनते हैं। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भारत देश है प्यारा। यह कविता सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है। भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है यह सबसे न्यारा। अलग अलग है यहाँ सभी के रूप रंग, पर सुर सब एक ही गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हर प्रदेश की है यहाँ अलग एक जुबान, पर मिठास की है सभी में शान। अनेकता में एकता को पिरोकर सबने हाथ से हाथ मिलाकर देश संवारा। अब लगा रहा है भारत हम सब एक हैं का नारा। भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है यह सबसे न्यारा। धन्यवाद। प्रताप, आपने अपनी मधुर आवाज से कोकिला की आत्मा को फिर से उजागर कर दिया। Now silent, now singing and swinging, like blossoms that bend to the breezes or showers. Now wantonly winding, they flash, now they falter and lingering, languish in radiant coil. Their jewel-girt arms and warm, wavering, lily-long fingers enchant through melodious hours, eyes ravished with rapture, celestially panting, what passionate bosoms aflaming with fire. So now, let us watch these graceful young ladies put these words into effect. Good morning, ma'am. Morning students. Today we will be learning about a great freedom fighter, Sarojini Naidu. Can anyone answer which association she helped to establish? Yes, please. Women's Indian Association. Yes, that is exactly correct. In her whole journey, she inspired several women and took part in the civil disobedience movement. She is also known as the Nightingale of India. Does
Does anyone know why? Yes, ma'am, I know. She was a great politician. Oh no, that is not correct. Can anybody else answer? Yes. She was a great poet. That is correct. She was given this title by Mahatma Gandhi. But does anybody know why are we talking about her today? Yes, ma'am. I know. Her birthday is approaching. Yes, it is approaching and it's on 13th of February. So before leaving, today's assignment is to write an essay on Sarojini Naidu in 400 to 500 words. Your submission will be on Monday. Have a great day ahead. Vismay, why do you seem so worried? यार आज मैम ने इतना सारा सरोजिनी नायडू पे बताया और मुझे कुछ नहीं, और तुम सब लोगों पे इतना है और ऊपर से एग्जाम पर प्रेशर है। मैं कैसे कोप अप कर पाऊंगा इसके साथ? यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है एग्जाम्स का? चिल कर। चलो, I'll tell you guys a story. चलो अब कुछ मामूली इंजीनियर स्टूडेंट्स की कहानी देखते हैं। अरे वायरस आ रहा है अंडे लेके। ये क्या है? सर नेस्ट। किसका? कोयल बर्ड की नेस्ट है। रॉन्ग। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडों को दूसरे के घोंसले में रखती है। जब उसके बच्चे दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे दूसरे अंडों को गिरा देते हैं। कंपटीशन ओवर। लाइफ बिगिंस विथ मर्डर। दैट्स नेचर। कॉम्पीट और डाई। यू ऑल्सो आर लाइक द कोयल बर्ड्स। देखो इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं हर साल आईसी में। लाइफ इज अ रेस। इतना प्रेशर देख के तो मुझे भी डर लग रहा है। चलो देखते हैं ये तीन दोस्त अपने लेक्चर में क्या करते हैं। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? चलो मशीन को डिफाइन करो। सर मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट सर। गर्मी लगी पंखा चालू किया, मशीन है सर। दोस्त की याद आई, टेलीफोन किया, मशीन है सर। असल में ना हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेकर पेन के जिप तक सब मशीन है सर। 1 सेकंड अप, 1 सेकंड डाउन, 1 सेकंड अप, 1 सेकंड डाउन, 1 सेकंड अप, 1 सेकंड डाउन। डेफिनेशन क्या है? अप डाउन ये करोगे, ये लिखोगे एग्जाम में। अब मशीन का डेफिनेशन कौन देगा? सर machines are any combination of bodies so connected that the relative motions are constrained, and by which means force and motion may be transmitted as a screw or its nut or a lever arranged to turn about a fulcrum or a pulley about its pivots, etc. Especially a construction more or less complex consisting of a combination of full mechanical elements such as wheels, levers, cams, etc. क्या बात? लेकिन सर मैंने भी तो यही कहा आसान भाषा में। अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहते हो तो आर्ट्स या कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कर लेते। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जो। गेट आउट ऑफ माई क्लास। सिंपल भाषा में बाहर निकलो मेरी क्लास। वापस क्यों आ रहे हो? सर कुछ भूल गया था। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrated, non-illustrated, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed with a forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. कहना क्या चाहते हो? सर बुक सर किताबें। ये सीधे सीधे नहीं बता सकते थे? सर थोड़ी देर पहले कोशिश की थी पर आपको अच्छा नहीं लगा था। सर प्लीज इमरजेंसी सर। ओके सेटल डाउन देन। हेलो टाइम्स अप। सर 5 मिनट सर, हम आधा घंटा लेट आए थे सर, इमरजेंसी थी सर। सर दे आर स्टिल राइटिंग। आप लेट हो गए, मैं नहीं ले सकते हैं। सर आप जानते हैं हम कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर क्या आपको हमारा रोल नंबर और नाम पता है? नहीं। कौन है तुम लोग? अगर नहीं पता तो ये तो रांचो के लिए नॉर्मल था। वो एक क्लास से निकलता दूसरे में घुस जाता। इसकी वजह से एक और था, जॉय लोबो। सर एक्सक्यूज मी सर, वो कॉन्वोकेशन की डेट्स मिल जाती थी। क्यों? वो डे रिजर्वेशन कराना चाहते हैं। मैं गाँव का पहले इंजीनियर हूँ सर, सब रिलेटिव मिलना ना चाहते कॉन्वोकेशन पर। In that case, please call your dad. Please hurry up. Please don't waste my time. यस सर। हेलो डैड, डायरेक्टर साहब आपसे बात करेंगे। Mr. Lobo, इस साल आपका बेटा ग्रेजुएट नहीं होगा। Mr. Lobo, he has violated all the deadlines.
मिस्टर लोबो अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है, हमने बताया दैट ही इज मेकिंग सम नॉनसेंस हेलीकॉप्टर। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप ट्रेन की रिजर्वेशन मत कराइए। आई एम सो सॉरी सर। आई एम दिस क्लोज सर। इज योर प्रोजेक्ट रेडी सर इज योर प्रोजेक्ट रेडी? सर आप एक दफा देख तो लीजिए, मुझे बस थोड़े से एक्सटेंशन की जरूरत है सर, प्लीज। मिस्टर लोबो मैं आपको सिंपैथी दे सकता हूँ, एक्सटेंशन नहीं। आई एम सॉरी। बस अब और नहीं झेल सकता इतना प्रेशर। इस सिस्टम में, इस दुनिया में टैलेंट की किसी को कदर नहीं। सबको बस पड़ी है तो सिर्फ मार्क्स की। आई कांट डू दिस एनीमोर। आई क्विट। राजू रस्तोगी कहाँ है? Present, sir. Oh, hi, everybody. Good morning, sir. कल रात को तुम कहाँ थे? सर पढ़ रहा था सर, फुल नाइट पढ़ रहा था सर। हाँ सर, 2 रातों से सोया नहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। रियली? क्या पढ़ाई कर रहे थे? सर इंडक्शन मोटर सर, फुल चैप्टर करता सर, फुल। In that case, Mr. Rastogi, can you tell us how an induction motor starts? Mr. Rastogi, let's have a cup of tea in my office. May I come in, sir? Mr. Raju Rastogi, you are rusticated from this college. आपको क्लास में नशे पे पाया गया and you have violated the discipline of this institute. आई एम सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर, पापा मर जाएंगे सर, सॉरी। ठीक है, फिर तुम्हारा नाम निकाल के रणछोड़ दास छाछड़ का नाम डाल दो। तुम्हारे पास सोचने के लिए 7.5 मिनट है। तो ऐसी थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 इडियट्स की कहानी। थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी चुलबुली। अब मैं सरोजिनी नायडू द्वारा कहे गए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू फाइंड स्टॉक्स। The most traffic moment, surprise test in your first period, the most peaceful journey, way to classroom, the most precious moment, meeting friends, the most wonderful news, teacher is absent. So why to live such a stressful life when life is giving so many things to you? ऐसा ही कुछ कहती थी सरोजिनी नायडू। एक सेल्फलेस लाइफ जियो, चैलेंजेस को बीट करो, अपनी बुकिश लैंग्वेज से नहीं, पर अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने हार्ड वर्क से। और ऐसे ही ज़िंदगी कितनी कलरफुल और जॉयफुल बन जाएगी। खुल के ज़िंदगी का मज़ा उठाओ यार। एंड गेस व्हाट, आज का आपका मज़े का डोज हमारे इंचार्ज है, और अभी हमारा डोज ख़त्म नहीं हुआ है। चलो अब एक मस्त सा डांस देखते हैं।